जा बिहारी जा बिहारी राधा जा बिहारी या गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी या गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा पूजा बिहारी जय राधा पूजा बिहारी या गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी या गोपी जन गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Krishna dear devotees. So welcome you all to HSR ISKCON. So today we are going to have a session on Bhagavad Gita chapter 3 and verse number 3. So I'll try to cover in English and Hindi both. श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. Anybody from Mataji's side? श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. प्रभुजी. श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. So we'll see the translation by His Divine Grace Srila Prabhupada ki. The Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and others by devotional service. In the second chapter, verse number 39, Lord explained two kinds of preceders, namely Sankhya Yoga and Karma Yoga or Buddhi Yoga. In this verse, the Lord explains the same more clearly. Sankhya Yoga or analytical study of nature of spirit and matter is the subject matter for the persons who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. The other class men work in Krishna consciousness, as it is explained in the 61st verse of the second chapter. The Lord has explained also in the 39th verse that by working by the principles of Buddhi Yoga or Krishna consciousness, one can be relieved from the bonds of action, and furthermore, there is no flaw in the process. The same principle is more clearly explained in the 61st verse, that this Buddhi Yoga is to depend entirely on the Supreme, and in this way, all the senses can be brought under the control very easily. Therefore, both the yogas are independent, as
religion and philosophy. Religion without philosophy is sentiment or sometimes fanaticism, while philosophy without religion is mental speculation. The ultimate goal is Krishna, because the philosophers who are also sincerely searching after the absolute truth come in the end to Krishna consciousness. This is also stated in Bhagavad Gita. The whole process is understand the real position of the self in the realization to the super self. The indirect process is philosophical speculation by which gradually one may come to the point of Krishna consciousness, and the other process is directly connecting everything with Krishna consciousness. Of these two, the paths of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by philosophical process. Krishna consciousness is itself the purifying process, and by the direct method of devotional service is the simultaneously easy and sublime. Next, number 4. न कर्मणाम अनारंभाम नैष्कर्म्याम पुरुषोऽस्तु ते न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभाम नैष्कर्म्याम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। Not by merely abstaining from the work can one achieve freedom from the reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. The renounced order of the life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed form of duties, which are laid down just to purify the hearts of the materialistic man. Without purification, one cannot attain the success by abruptly adopting the fourth order of the life, sannyasa. According to the empirical philosophers, simply by adopting the sannyasa or retiring from the fruitive activities, one at once become as good as Narayana. But Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of heart, sannyasa is simply a disturbance to the social order. On the other hand, if someone takes to the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advise in the cause is accepted by the Lord in Buddhi Yoga. Swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Even a slight performance of such a principle enables one to overcome great difficulties. Let's do Mangalacharan before we start the explanation for whatever we read. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Can you on the Bluetooth? It's still here. Okay. Okay, Hare Krishna. So, today we are going to learn two important verses from Bhagavad Gita. पहले वर्ष में कृष्णा दो तरीका का two types of transcendentals. First of all, Arjuna was in confusion. If you see in the first two shlokas, Arjuna was in confusion. What to do? What not to do? He is not aware. The whole first chapter is all about expressing his Arjuna's, situation and bewilderment. And Arjuna was not happy to fight. So he was in a confusion. So he has given so many reasons for why he does not want to fight. Compassion is one reason. And the second one is the fear of sinful reactions. So Arjuna may get sinful reaction if he fight. मतलब पाप लगेगा. अगर युद्ध करके सबको मारेंगे तो पाप लगेगा. दूसरा फैमिली डिस्ट्रक्शन. अगर युद्ध में जीतना है तो सबको मारना है. सब कौन है? पूरा अपना फैमिली. अगर सबको मार दिया तो उसके बाद कौन रहेगा? सबको मारना जो है इट्स ए सिंफुल एक्टिविटी. मारना सिंफुल एक्टिविटी. तो अर्जुना को लगा कि अगर मैं सबको मारते जाऊंगा तो सिन लगेगा एंड फैमिली डिस्ट्रक्शन होगा. फैमिली डिस्ट्रक्शन का एक और बात यह है, उस टाइम पे कुरुक्षेत्र युद्ध में पूरा हस्तिनापुर में जितना भी लोग हैं सब पार्टिसिपेट किया. ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पार्टिसिपेट नहीं किया. बड़ा लोग, बच्चा छोड़ दीजिए, बच्चा लोग पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन बड़ा आदमी सब लोग पार्टिसिपेट किया. अगर पांडव जीतना है तो सबको मारना है तो सब मर जाएगा.
सब मर जाएगा तो घर के अंदर जो लेडीज है, लेडीज का प्रोटेक्शन कौन देगा? घर में सब बड़ा आदमी सब मर गया तो घर में प्रोटेक्शन करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो घर में प्रोटेक्शन करने वाला कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा? अनवांटेड प्रोजनी स्टार्ट हो जाएगा, राइट? उसका प्रोटेक्शन ही नहीं है तो अनवांटेड प्रोजनी स्टार्ट होगा। दूसरी बात, ट्रेडिशंस खत्म हो जाएगा। अभी हमको अगर इफ वी हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स लाइक संडे वी आर कमिंग हियर एंड वी आर डूइंग some service to Lord Krishna. Yeah, it has become a ritual for us, right? It has become a ritual for us for quite long time. So this becomes a tradition. अगर बच्चों को बोलने वाला कोई नहीं रहता है तो उसको क्या पता चलता है, कैसा पता चलता है कि क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है? अगर हम हमारा माता पिता से अगर नहीं देखा कि डिफरेंट संस्कार जो होता है, बच्चा जन्म लेते ही क्या संस्कार होता है, बच्चा बड़ा होने के बाद क्या संस्कार होता है, फिर शादी करते वक्त क्या संस्कार होता है, फिर बड़ा होने के बाद क्या संस्कार होता है, और कोई मर गया तो क्या संस्कार होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हम कहाँ सीखा? कहीं पढ़ा है क्या हम लोग? कहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। लेकिन हमको पता है। कैसे पता है? क्योंकि हम देख रहे हैं, बड़ों से देख के हम समझ रहे हैं। अगर बड़ा है ही नहीं है घर में, क्या होता है? धर्म नष्ट हो जाता है ना? धर्म नष्ट हो जाता है। तो इसलिए अर्जुना को लगा कि धर्म नष्ट होने का मैं जिम्मेदार बनूंगा। आई विल बी द रीजन फॉर द होल डिस्ट्रक्शन ऑफ द धर्म। तो आई डोंट वांट टू बिकम द रीजन फॉर दैट। So this is one of the other reason that he mentioned. And the next thing is confused, completely confused. That's what we have seen. He does not know fighting or not fighting is the right thing in the current situation. This is the last reason for why he does not want to fight. And इसी situation में हम सब भी रहते हैं कभी ना कभी। यहाँ पे कर्म के बारे में बात करता है। पूरा 3rd चैप्टर टॉक्स अबाउट कर्म। अर्जुना के लिए कर्म क्या है? युद्ध करना है ना? हमारे लिए कर्म क्या है? अपना डे टू डे लाइफ में जॉब करना है, बिजनेस करना है, कमाई लेके आना है, ये हमारा कर्म है। या फैमिली को देखना है, ये हमारा कर्म है। तो हम अपने आप को अर्जुना के सिचुएशन में देखना चाहिए। नहीं है तो कृष्ण जो अर्जुना को बोल रहे हैं वो हमको भी एप्लीकेबल है, हमको भी सुनना है, हमको भी पालन करना है। ये हमको समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता कृष्ण ने सिर्फ अर्जुना के लिए नहीं बोला, भगवत गीता कृष्ण ने हम सबके लिए बोला है। अर्जुना का माध्यम से हमको समझना है। यहां पे हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अर्जुना को कृष्ण ने युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, हमको तो युद्ध करना जरूरत नहीं है, तो दिस टोटल सब्जेक्ट इज नॉट फॉर मी। दिस इज नॉट द अंडरस्टैंडिंग। इसमें एक्चुअली एक बोला गया है कि 4th ऑर्डर ऑफ द लाइफ, 4th ऑर्डर ऑफ द लाइफ मीन्स संन्यास। मतलब सबको संन्यास ऑर्डर तक जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? मतलब हम सबको एक ना एक दिन संन्यास लेना चाहिए। अगर संन्यास नहीं लिया, हम इस बॉडी से गुजर गया, तो दैट मीन्स यू हैव नॉट लिव्ड द वे यू वांट टू लिव, और यू हैव नॉट लिव्ड द वे यू आर सपोज्ड टू लिव। अगर संन्यास लेना इतना जरूरी है, संन्यास के बिना अगर हम लोग सिद्धि पाना मुश्किल है, तो 4th ऑर्डर में सीधा जा सकते हैं क्या? क्यों हम लोग ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में आ गए, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ में जाएंगे, देन वानप्रस्थ में से संन्यास जाएंगे। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द लाइफ, one after one. And if you see in
ब्रह्मचर्य आश्रम में अपना रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होता है. When you become a grihastha person from brahmachari, then your responsibilities are different. And when you renounce, you don't need to completely renounce at least. When you take, vanaprasth, then the living style will be different. And when you go to sannyas, the style is different. If the ultimate goal is to take sannyas, then why should we need all these things in between? Hum seedha, why can't we directly go to sannyas ashram? This is what is explained today in these two shlokas that we are going to see in Bhagavad Gita. So हम ये समझते हैं आज. दूसरा, हम लोगों को लक्ष्य होना चाहिए, है ना? सबको लक्ष्य है ना? Everybody have a goal and we all work for our goal. While working for our goal, we should understand whether the goal that we set is right or wrong. हम लोग ने सही लक्ष्य को रखा है क्या, सही लक्ष्य की तरह हम जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं क्या, हमको समझना चाहिए. अगर आदमी बॉडीली कॉन्शियस में है तो अलग गोल होता है. अगर आदमी स्पिरिचुअल कॉन्शियस में है तो गोल अलग होता है. तो इसलिए भगवान कृष्ण सेकेंड चैप्टर में सब कुछ बोला गया है. He has explained everything. Who are we? Who are we? Where were we before we take this body? Where are we going to go after we leave this body? Right? This is what explained. And he clearly mentioned that we are not this body. अगर कोई भी रास्ता में जा रहा है, अगर उससे पूछेगा कि आप कहां से आ रहे हैं, तो अगर वो बोलेगा तो मेरे को पता नहीं है मैं कहां से आ रहा हूं, ठीक है, अब कहां जा रहे हैं, तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता है मैं कहां जा रहा हूं. तो हम क्या समझते हैं उसको? क्या समझते हैं उसको? पागल. अगर मैं पूछूंगा बिफोर यू टेक दिस बॉडी हु आर यू, बोलिए, हु आर यू? आप कौन थे बिफोर यू टेक दिस बॉडी? आप इस जन्म में आने से पहले आप कौन थे? यू डोंट नो. आप ये बॉडी छोड़ने के बाद कहां जाएगा? तो मैं क्या समझूं? तो ये बहुत जरूरी है हमको मालूम होना कि हम दिस बॉडी नहीं है. इसलिए कृष्णा एक्सप्लेन्स क्लियरली इन सांख्य शास्त्र, सांख्य योग उसको बोलते हैं. सेकेंड चैप्टर में सांख्य, पूरा सांख्य योग बोलते हैं. दैट मीन्स सांख्य योग में कृष्णा एक्सप्लेन्ड इन ए वे दैट a spiritual subject is different from the material subject, and he tried to eliminate what you are not, and then he tried to make you understand what you are, right? Then he clearly said we are not this body, we are the soul, and the soul exists forever. Soul is eternal. Even before we take birth, even after we die, we exist. We exist. And this is eternal truth. If we don't know this, that means we don't have knowledge. Right? We don't have knowledge. Knowledge is very, very important. Knowledge is very, very important. तो उसके लिए कृष्णा ने सांख्य योग बताया. मतलब पूरा material पूरा philosophy of the matter and the philosophy of the spiritual entities समझाया. समझाने के बाद इन्होंने बोला कि स्थित प्रज्ञ के बारे में बात किया. स्थित प्रज्ञ, a person in Krishna consciousness is called स्थित प्रज्ञ. And throughout the Bhagavad Gita we will try to learn about the स्थित प्रज्ञ. Now, स्थित प्रज्ञ concept does not end with the second chapter.
throughout Bhagavad Gita we will learn how Sthita Prajna will be. That's why Arjuna asked, we all might be thinking that we are also Sthita Prajna. That's why Arjuna asked, Sthita Prajna का मतलब क्या है? Sthita Prajna है कौन? Sthita Prajna कैसा बैठता है, कैसा उठता है, कैसा चलता है, कैसा बात करता है, उसका लैंग्वेज क्या है, ये सब कुछ पूछा। क्योंकि हम किसी को देख के पहचान सकते हैं, ये है ही कौन, ये करता क्या है, ये आदमी कैसे आदमी है। एक आदमी को देखने से ही पता चल जाएगा, है ना। कुछ लोग बात करने से समझ में आ जाएगा कि यह आदमी कौन है। तो इसलिए अर्जुना ने ये सारा चीजें पूछा है, आइडेंटिफाई कैसे करना है स्थित प्रज्ञ को। अगर स्थित प्रज्ञ बनना है तो फिर व्हाई कृष्णा इज आस्किंग अर्जुना टू बिकम ए वॉरियर? व्हाई कृष्णा वांट्स अर्जुना टू फाइट एंड किल पीपल? दिस इज द कंफ्यूजन दैट अर्जुना हैज। दैट्स व्हाई अर्जुना वाज आस्किंग, अगर मेरे को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जाना है, एंड जो भी बुद्धि होगा आपने बताया सेकेंड चैप्टर पूरा, if I have to work in the Krishna consciousness, or maybe I have to go to the level of sannyasi, then why are you asking me to fight? तो इसीलिए अर्जुना को पूरा कंफ्यूज आ गया। If you see the second chapter is a summary of the whole Bhagavad Gita. He told about the karma, he told about the soul, he told about the body, and he told about the buddhi yoga, he told about the karma yoga, and he told about the bhakti yoga. Everything he told. Everything at one shot. सब कुछ एक साथ बोलेगा तो हमको कुछ समझ में आएगा? क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। What are the context? इसलिए अर्जुना ने हम सबके लिए अभी स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड चैप्टर पूछ रहे कि इतना बहुत कुछ बोल दिया, सब एक साथ बोल दिया, दिमाग पूरा भर गया, अभी मेरे को क्लैरिटी नहीं है क्या करना है। तो तब भगवान कृष्ण बोल रहे। तो भगवान कृष्ण बोल रहे, मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, टू टाइप्स ऑफ योगीज आर देयर, टू टाइप्स ऑफ yogis are there. The transcendentalists are two types. These two yogis are pious people, I would say, pious people. That means they are all trying to achieve the goal of a human life. They are not, simple materialistic people. Materialistic people का goal अलग होता है, and achieving the goal is not the fulfillment. राइट? एक गोल के बाद दूसरा गोल आता है, दूसरा गोल के बाद तीसरा गोल आता है। अगर मान लीजिए सारा गोल्स हमने अचीव कर दिया, मर जाएंगे, तो कहां जाएगा हमारा अचीवमेंट? कहां जाएगा हमारा करोड़ों रुपया? कहां जाएगा हमारा पूरा एसेट्स? कहां जाएगा हमारा पूरा बंगला काम धाम? कहीं आएगा हमारे साथ? नहीं आएगा। तो जो चीजें हम कमा रहे हैं, जो चीजें हम पा रहे हैं, अगर वो आपके साथ आता ही नहीं है, तो क्यों हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं उसके लिए जो परमानेंट नहीं है? परमानेंट चीजें के लिए हमको मेहनत करना चाहिए, जो हमारा साथ हमारा बाद भी आता है, हमारा साथ हमारा बाद भी आता है। इसलिए anything that you may be a pious person going to the temples, doing yajnas and doing charity, and observing lot of austerity, but your aim or your goal is not the ultimate goal, which is permanent goal. If the goal is to get material advancement, हम लोग कितना लोग प्रमोशन के लिए भगवान के पास नहीं गया? कितना लोग हम लोग कुछ अच्छा होने के लिए घर में, फैमिली में भगवान को प्रार्थना नहीं किया, है ना? और कुछ लोग ब्यूटीफुल वाइफ के लिए भी पूजा करते हैं, है ना? और कुछ लोग अच्छा लड़का, मतलब बच्चा के लिए भी पूजा करते हैं, बच्चा के लिए पूजा करते हैं, और वो बच्चा भी
क्या बोलता है, इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके लिए भी पूजा करते हैं। या हमारा क्या बोलते हैं उसका, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है मान लो, तब भी हम लोग पूजा करते हैं, है ना। तो ये सारा पूजा करने का मकसद स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं है, इन सब का मकसद है हमको मेटेरियल एडवांसमेंट। मेटेरियल एडवांसमेंट इज नॉट द एटर्नल, मेटेरियल एडवांसमेंट टेम्पररी है, टेम्पररी है, एक ना एक दिन उसको छोड़ देंगे हम लोग, या अपने आप वो चला जाएगा। उसको ट्रांसडेंटलिस्ट नहीं बोलते। पूजा करने वाला हर आदमी को भक्त नहीं बोल सकते। ट्रांसडेंटलिस्ट इज द वन हु इज अ डिवोटी, राइट। हर पूजा करने वाला आदमी भक्त नहीं है। भक्त वो है जो अपने आप को पहचानना चाहता है। भक्त वो है जो भगवान को टारगेट रखता है, भगवान के पास जाने के लिए अपना कर्म करता है, वो भक्त है। या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए जो काम करता है वो भक्त है। ऐसा भक्त अभी तक कृष्णा ने बोला दो तरीका का होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसडेंटलिस्ट, and these two types of transcendentalists are, one jnana yogi, two karma yogi. These are the two yogis Krishna is talking here. Jnana yogena, karma yogena yogina. Okay, these are the two yogis that Krishna is talking. तो हमको समझना चाहिए कि क्या ज्ञान योगी बनने से ठीक है या कर्म योगी बनने से ठीक है हमको? कैन वी अचीव व्हाट वी वांट बीइंग इन दिस बॉडी? दीज टू आर नॉट इंडिपेंडेंट योगा सिस्टम्स. We may be following some or other, spiritual practices. Somebody might be doing meditations. Somebody might be doing Kriya Yoga, somebody might be doing Jnana Yoga, Karma Yoga, or Dhyana Yoga, or maybe Bhakti Yoga. We may be saying that there are different transcendentalists in different paths to achieve the perfection. Perfection is getting the abode of Krishna. तो क्या हम लोग कोई एक योगा सिस्टम को पकड़ के हम लोग क्या हमारा इस जीवन का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो पा सकते हैं क्या? These are not all independent paths. These are all the steps in the ladder. These are all the steps in the ladder. एक स्टेप के बाद एक स्टेप, एक स्टेप के बाद एक स्टेप, एक स्टेप के बाद एक स्टेप, एक स्टेप चढ़ के हमको ऊपर जाना है। तो यू कांट से मैं एक ही स्टेप में रहूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। मैं ज्ञान योगी बनूंगा लेकिन आगे नहीं, कुछ नहीं करना है, पॉसिबल नहीं है। यहां पे ज्ञान योग का बारे में हम लोग अगर समझना है तो ये फिलॉसफिकल स्पेक्युलेशंस जो करता है उसको बोलता है ज्ञान योगी। हर ज्ञान योगी भक्त नहीं होता है। अब कोई भी योगा सिस्टम ले लो, उस योगा सिस्टम से फॉलो करो, फाइनली आपको भक्त बनना चाहिए। इफ यू डोंट बिकम ए भक्त देन यू डोंट गेट गॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल भक्त मीन्स क्या है? जो भगवान को प्रेम करता है, जो भगवान को सेवा करता है, वो भक्त है। सिर्फ मेटेरियल एडवांसमेंट के लिए पूजा करता है, वो भक्त नहीं है। भक्त वो है जो भगवान को सब कुछ अर्पित करता है, जो सब काम जो करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है, वो भगवान की सेवा का रूप में करता है, वो भक्त है। इफ यू आर ए कर्म योगी, you are on the first ladder, in the first step of the ladder, then you become next level, then become a jnana yogi. अगर हम
साइंस में अगर देखेंगे तो साइंस में टू प्रोसीजर्स होता है, एक थियरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है ना? एक थियरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। अब थियरी किया, थियरी सब कुछ पढ़ा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया, तो क्या होता है? हमको कुछ एक्सपीरियंस आता है, वी डोंट रियलाइज व्हाट वी स्टडीड। हमको जो पढ़ा है उसका मतलब क्या है, वो पढ़ के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे समझ में नहीं आता है। इसलिए साइंस का सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल सेशंस भी होता है, प्रैक्टिकल में हमको वो करके दिखाता है, ठीक है? वैसा ही स्पिरिचुअलिटी में भी दो है, एक है रिलीजियन, राइट? स्पिरिचुअल में भी दो है, एक है रिलीजियन और दूसरा भक्ति, राइट? या यू कैन से फिलॉसफी, रिलीजियन एंड फिलॉसफी। तो हमको समझना चाहिए, साइंस में तो हमको पता है क्या है थियरी, क्या है प्रैक्टिकल, हमको पता है। अब स्पिरिचुअलिटी में क्या है रिलीजियन, क्या है फिलॉसफी, हमको समझना चाहिए। फिलॉसफी इज लाइक ए थियरी, रिलीजन इज लाइक ए प्रैक्टिकल। और रिलीजन क्या होता है कि कर्म करना है। Religion does not mean that the caste system here, okay? Religion means working for Krishna, working for God, doing karma for Krishna. This is religion. इसलिए हम क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं और जपा करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जपा करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? आरती करते हैं। उसके बाद भगवान के लिए कुछ भोगा बना के ऑफर करते हैं। फिर इसके बाद कुछ पढ़ते हैं, भगवत गीता, स्क्रिप्चर्स वगैरह। उसके बाद मान लीजिए ये सब कुछ हम करते नहीं है, लेकिन संडे तो आते हैं यहाँ पे। संडे आके क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? प्रसाद लेने से पहले क्लास होता है ना, ठीक है? तो ये जो भी कर रहे हैं, अगर क्लास नहीं है, मान लो यू डोंट हैव दिस क्लास, यू केम, you worshiped the God, you did kirtan, you had prasadam and left home. क्या होता है अगर क्लास ही नहीं है तो? Philosophy part is missing. Religion is there, but philosophy is missing. Philosophy की बिना religion एक मूढ़ भक्ति होता है। This is a blind faith. Can anybody get faith on something without you understanding about it? तो फिलॉसफी जरूरी है, फिलॉसफी जरूरी है। अगर मान लीजिए हम आते हैं, बाकी कुछ जो बोला हम नहीं करते, ना कीर्तन करते हैं, ना भजन करते हैं, ना पूजा करते हैं, ना प्रसाद लेते हैं, सिर्फ क्लास डिस्कस करके चला जाता है, तो क्या होता है? थियरी है, क्लास मतलब थियरी, फिलॉसफी, बट प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है तो भक्ति नहीं आएगा। तो जब तक आप फिलॉसफी सीखते रहेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे नहीं है, तो क्या होता है? दिस बिकम्स मेंटल स्पेकुलेशन। वी डोंट नो व्हाट इज गॉड, वी डोंट नो हु इज, वी डोंट एक्सपीरियंस व्हाट वी आर लर्निंग। उसके लिए फिलॉसफी भी होना चाहिए, रिलीजन भी होना चाहिए। रिलीजन मीन्स रेगुलरली व्हाट यू आर डूइंग फॉर द एडवांसमेंट, द साधना, the practice that we are doing for becoming a devotee is called philosophy. भक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद स्ट्रांगली बोलता है परपोर्ट में, a philosophy without bhakti is mental speculation.
उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है. And at the same time, the bhakti without philosophy becomes a blind faith. Becomes इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, fanaticism. Fanaticism. Philosophy without religion is a mental speculation, right? And the religion without philosophy is, where is it? Sentimental bhakti, which is called Amooda bhakti. Okay. So we are not sentimental devotees. We want philosophy also. That's why we discuss about Bhagavad Gita. Okay? We learn Bhagavad Gita. तो एक बात समझ लीजिए, ज्ञान योगी is more inclined towards the philosophy. He will try to understand what is body. He will try to understand what is soul. He will try to understand this much. Beyond which, okay, I know what I am. I am not a body. I am a spirit soul. I understood that. Then what? इससे क्या होता है? So when you understand that I am a spirit soul, then I need to ensure that what is the eternal position of the spirit soul. I have to try to give that to that spirit soul. If I am not taking my spirit soul to the position where it was earlier, then the knowing about the spirit soul has no meaning. अगर कोई बच्चा है, रास्ता में घूम रहा है, रास्ता में इधर उधर जा रहा है, मतलब अपना मम्मी पापा से दूर हो गया, अलग हो गया. And if he is separated from his parents and he knows that I belong to so and so family, or he knows that my father is so and so and my mother is so and so, my address is so and so, then it makes sense, right? Then what is our duty then? We have to make sure that that kid is handed over to that particular parents. Now we understand we are soul and we are a fragmental part of Krishna. We are a part and parcel of Krishna. We understood who is our father. We understood what is our family. Then what is our next duty? We have to connect ourselves with Krishna. If you don't connect yourself with Krishna and you understand that I am a spirit soul and I am a part and parcel of Krishna, the knowledge does not end there. Right? So that's why philosophical speculations जो करता है, philosophers जो सांख्य योग के बारे में समझाता है, that itself is not the end of the knowledge. It is very important for you to understand your soul, but that is not the end of the knowledge. You need to understand what is the eternal position of this soul. So then you get that position, that is the end of the knowledge. That is the real knowledge. And the Jnana Yogis, for getting this knowledge or to be in the situation of the soul, they renounce. Jnana Yogis, they renounce. Renounce means taking sannyas. Jnana Yogis sannyas लेता है. और संन्यास लेना मतलब सब कुछ छोड़ना है, डिटैच, कंप्लीटली डिटैच. No mother, no father, no wife, no son, no house, no village, nothing. Nothing I possess. I renounce everything. This is what they do, ज्ञान योगीस. ये करने के लिए उसका जो मेथड अपनाते हैं और उसको बोलते हैं मेडिटेशन. नेति नेति कॉन्सेप्ट. नेति नेति कॉन्सेप्ट मीन्स
I'm not this, I'm not this, I'm not this, I'm not this. And what am I? Whatever is left is me. Right? And this is not done, this is not. See, elimination process basically. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो हमको आंसर मालूम नहीं है, लेकिन व्हाट इज नॉट आंसर वी नो. ऑप्शन 1 इज नॉट एन आंसर, ऑप्शन 2 इज नॉट एन आंसर, ऑप्शन 3 इज नॉट एन आंसर, ऑप्शन 4 आई डोंट नो वेदर इट इज आंसर और नॉट, बट इट इज आंसर बिकॉज other 3 I know that they are not answers. That's why I strongly believe that whatever I don't know is definitely an answer. This is the Jnana Yogi's process, elimination process. So Jnana Yogi का जो प्रोसीजर है, जो मालूम करना है, अपने आप को मालूम करना है, then they think that in this neti concept, मतलब negating what is not me, and they try to discriminate. They try to discriminate. भेद देखता है, ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है. Then they try to understand what is actual object. Then they try to understand what is a real thing, what am I. They will try to understand that. In this process they try to get the knowledge. Sometimes their speculation may go wrong. This is called speculation, because by speculating we will get the answers, right? कभी कभी इन लोगों, ये लोग भी अच्छा लोग ही हैं, ऐसा नहीं है कि बुरा लोग हैं. ये लोग भी कभी कभी मानते हैं कि भगवान है, भगवान के बिना कुछ नहीं होता है, भगवान के बिना कुछ नहीं होता है, तो मानते हैं. लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए कोरोना आ गया, हजारों लोग मर गया, या कोई अर्थक्वेक आया, हजारों लोग मर गया, तब सोचे भगवान किधर है, भगवान किधर है. अगर भगवान होता है तो क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब उसको फुल फेथ नहीं है. उसको कुछ अच्छा हुआ तो भगवान के लिए हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो भगवान की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ है, कि अगर भगवान है कि नहीं है. मतलब they themselves debate within their mind they debate भगवान कौन है, भगवान है कि नहीं है, अगर भगवान है तो कैसा होता है, वो भी नेति कॉन्सेप्ट में. ठीक है, अगर भगवान है तो हमारा जैसा अगर होता है या नहीं होता है. अगर हमारा जैसा होता है तो हम जैसा डिफिकल्टीज हमारे लिए है, वैसे ही डिफिकल्टीज भगवान के लिए भी होगा. See, if I am not having this body, I will not get hungry. I don't have to eat, right? Because I am getting hungry, I have to work. And because I have to work, because I work, I get money. And for getting money, we do lot of other karmas. Sometimes if you are straightforward, and sometimes if you are working religiously, then you don't get money. You have to cheat. तभी पैसा आता है ना? तो ये सारा कर्म जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमको अपने आप को अच्छा रखने के लिए, ठीक है, हमारा फैमिली को देखभाल करने के लिए. तो इस प्रोसेस में हम लोग कर्म बंधन में आ रहे हैं. We are coming in the bondage of karma. Every karma will have a reaction. No matter whether you are doing a good karma or bad karma. A good karma will have a good reaction, a bad karma will have a bad reaction. But reaction is common. There is no karma which will not give you reaction. And because of that reaction, we are in this body. If we don't have any reactions, we wouldn't have got this body. Right? That means पिछले जन्म में हम कुछ किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, इसलिए हमको ये बॉडी मिला है, ये जीवन मिला है. और इस जन्म में भी हम करते रहेंगे तो अगले जन्म में और एक बॉडी मिल जाएगा, और अगले जन्म में भी और करते रहेंगे तो दूसरे जन्म और मिलेगा, उसमें भी और कर्म करेंगे. भागवतम 4th कैंटो में एक स्टोरी आता है, और स्टोरी है पुरंजन का स्टोरी. कितना लोगों को मालूम है पुरंजन स्टोरी? पुरंजन स्टोरी. Okay, I'll quickly explain the story of Puranjan. पुरंजन एक आदमी है, एक राजा है, and the king is in
in the nature, his nature is to enjoy, and he get married. So first of all, he was not a king. He was finding a place where he can become a king. Right? He was finding a place he can go and he can become a king in that place. So he was searching all over the world. What is the right place for me to enjoy? What is the right place for me to rule? तो वो ढूंढते 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 एक जगह में आ गए. उस जगह का नाम है नवद्वारपुर. क्या नाम है? नवद्वारपुर. उस जगह में आया है. तो उसको लगा कि दिस इज द राइट प्लेस फॉर मी टू एंजॉय, दिस इज द राइट प्लेस फॉर मी टू लिव. नवद्वारपुर में आ गया. और एक मेरा आया एंजॉय करने के लिए, तो शादी करना चाहिए, है ना. और शादी किया पुरंजनी से. पुरंजन है ये आदमी का नाम है, पुरंजन. और वो शादी किया पुरंजनी से. और ये पुरंजनी के साथ नवद्वारपुर में रह के एक एक नवद्वारपुर से बाहर जाएगा. नवद्वार मीन्स 9 गेट्स, राइट. उस पर्टिकुलर विलेज का 9 गेट्स होता है. एक एक गेट से बाहर जाएंगे तो एक एक एंजॉयमेंट मिलता है ना. तो ये बीवी को लेके क्या है, बीवी पुरंजनी इस वाइफ को लेके हर रोज एक एक गेट से बाहर जाता है, वहां पे एंजॉय करके वापस इस बॉडी में. तो इस तरीके का जीवन जी रहे. और कुछ दिन के बाद वो मर गया. मरने के बाद, मरने से पहले he was in a full consciousness of enjoyment, he was in a full consciousness of enjoying with wife. तो वहां पे एक लड़की, एक लेडी आया है अटैक करने के लिए उसका. और उसका नाम है कालारूपी. व्हाट इज द नेम? कालारूपी. कालारूपी करके आया है, अटैक किया है. तो उसके साथ फाइटिंग कर रहे हैं पुरंजन. और पुरंजन बोलता है नहीं, मेरे को और भी एंजॉय करना है, आई कैन नॉट फाइट विद यू. कालारूपी बोलता है मेरे से जीतो पहले, देन यू कैन एंजॉय. तो देन तब भी वो मेरा वाइफ, मेरा किड्स, मेरा नवद्वारपुर, उसके बारे में सोच ही रहे. तो फाइनली ये कालारूपी जीत गई. कालारूपी जीत गई तो पुरंजन को क्या होगा? मर गया. मरते मरते क्या सोच रहे? मरते मरते वो अपना बीवी के बारे में सोच रहे हैं, अपना एंजॉयमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, अपना नवद्वारपुर के बारे में सोच रहे हैं, पूरा यही सोच रहे हैं. तो फिर वो वापस क्या हुआ? वो मर के फिर से दूसरा जन्म लिया है. और वो दूसरा जन्म में क्या बना है? बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज वाइफ, ही बिकेम हिज वाइफ. पुरंजनी बन गई. मतलब भगवान कृष्णा 8th चैप्टर में बोलता है इसके बारे में कि एट द टाइम ऑफ लिविंग द बॉडी, वट एवर यू आर थिंकिंग एंड यू विल गेट दैट नेचर आफ्टर यू लीव द बॉडी. दिस इज व्हाट कृष्णा मेंशन इन द 8th चैप्टर. तो ये बंदा बीवी के बारे में सोच रहा है, ये लड़की बन गया, पुरंजनी बन गया. अगली जन्म में पुरंजनी बन गई. फिर वापस यही तरीका से जी रहा है, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट. फिर एक राजा को शादी किया. लड़की है ना, तो एक लड़का को शादी करना चाहिए. एक राजा को शादी किया, एंड दैट राजा इज पुरंजना. ठीक है. फिर द सेम लाइफ ही इज लिविंग. फिर उस टाइम पे एंजॉयमेंट का मतलब यह है कि राजा को देखभाल करना है, राजा के साथ एंजॉय करना है, और राजा जहां पे लेके जाएंगे वहां पे जाना है, जो करना करवाने की बोलेगा तो वो करना है, उसका फैमिली पूरा. देन वहां पे मर गए. तो क्या हो गया? फिर एक और जन्म, फिर एक और जन्म. एक्चुअली ये स्टोरी बोलता है नारद मुनि टू प्राचीन बरही. नारद मुनि बोलता है ये स्टोरी प्राचीन बरही को बोलता है. Why Prachina Barhi was chosen to tell this story by Narada Muni was because Prachina Barhi was a pious guy. He's a king. Prachina Barhi was a pious guy. He's a king. He does a lot of yajna. He does a lot of puja.
फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज ओन किंगडम, ताकि सबके लिए अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा होगा, इतना ही कर रहा है। प्राचीन बरही का प्रचेत स्तर की चार ही है ना, मतलब 4 लड़का, प्रचेत 9 पीपल। ओके, प्राचीन बरही के लिए 9 सन्स हैं, दे आर प्रचेतास। Actually, in 9 sons, they went to forest to do the austerity. So the tradition is that they finish their austerity and come back, then they become kings. तो प्राचीन बरही तो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का किंग होना चाहिए ना, बट ही हैज नो, ऑल हिज सन्स वेंट फॉर तपस्या। तो तपस्या से वापस आने तक इसको तो रूलिंग करना है। And he has been continuously doing this karma kanda. ये पुण्य कार्य करो वो अच्छा होता है, वो पुण्य कार्य करो ये अच्छा होता है, ये पुण्य कार्य करो ये अच्छा होता है। जैसा हम कर रहे हैं वैसा, ठीक है, वैसा ही करते गए, वैसा ही करते जा रहे हैं। और नारद मुनि जैसा भक्त अगर ऐसी कर्म कांड करने वाला लोगों के पास आता है तो गुस्सा आता है, पूरा लाइफ वेस्ट कर रहे थे। हमको लग रहा है कि ये पुण्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन नारद मुनि को लग रहा है तुम लाइफ वेस्ट कर रहे हो पुण्य कार्य करके। तो प्राचीन बरही को बोलता है कि तुम अभी अपना राज्य को छोड़ना है, यू लीव दिस किंगडम और चला जाओ, तू संन्यास बन, अभी बहुत हो गया तेरा एंजॉयमेंट। और एंजॉयमेंट के लिए और पूजा कर रहे थे, है ना, और यज्ञ कर रहे, और तपस्या कर रहे, तुम अभी ये सब कुछ छोड़ो, अभी जाओ। वो बोलता है ठीक है, उसके लिए और टाइम है। वो बोलते क्यों? क्योंकि मेरा जो बच्चा है प्रचेतस, वो अभी यहाँ पे नहीं है। अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा किंगडम का क्या होगा? वो लोग आने तक वेट करता हूं, मैं वेट करता हूं, वो आने के बाद चला जाऊंगा। दिस इज व्हाट प्राचीन बरही से। तब नारद मुनि को गुस्सा आके ये कथा सुनाया, पुरंजन का कथा सुनाया। इस पुरंजन का कथा में जो पुरंजन है, वो पुरंजन इज नथिंग बट द कंडीशनड सोल, बद्ध जीवी, द स्पिरिट सोल that we are talking about, right? I am not this body, I am this soul, we are telling, right? And the soul is hankering for enjoyment, and soul is finding all over the world where I should go and how I should enjoy, what is the right place for me to live and how I can enjoy. And that place is Navadvarapur, and that Navadvarapur is this body. And this Navadvarapur क्या है? ये बॉडी है। The soul is finding all over the world to place so that it can live and enjoy. तो इसको मिला है ये बॉडी, नवद्वारपुर करके ये बॉडी मिला है। And in this Navadvarapur we have 9 gates. Using these 9 gates we enjoy, right? The sense enjoyment, the senses that we have. हमारा इंद्रिय जो है, इंद्रिय से हम लोग एंजॉय करते हैं। एंजॉयमेंट के लिए है ना इंद्रिय। हाथ क्यों है, पैर क्यों है, आंख क्यों है, नाक क्यों है, टंग क्यों है? एंजॉय करने के लिए है ना? And the soul found this place, Navadvarapur, and started enjoying. And it got married to Buddhi. The Buddhi is Puranjani, wife of the soul, intelligence. और इंटेलिजेंस बोलता है ऐसा एंजॉय करो, ऐसा एंजॉय करो, और पुरंजन एंजॉय करता है यूजिंग सेंसेस। ये कर रहे हैं हम। और काल रूपी आया, अटैक किया है। कौन है वो काल रूपी? मृत्यु, टाइम। काल रूपी के साथ कोई लड़ाई करके जीत सकते हैं क्या? Is there anybody who was eternal? Is there anybody who cannot die here? कोई है ऐसा जो मरते नहीं है? कोई है आपका फैमिली में अभी तक कोई नहीं मरा? सबको मरना ही चाहिए, हम भी मरते हैं। जब काल रूपी आके हमारे साथ अटैक कर रहे हैं, तब भी हम लोग डेथ बेड में क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं हमारा एंजॉयमेंट्स के बारे में,
हमने जो कमाया है उसका क्या होगा, हम जो कमाया है उसको सही तरीके से यूज होगा नहीं होगा, बच्चा एंजॉय करता है कोई और एंजॉय करता है, हम जो कमाया, या हमारा वाइफ के क्या होगा, यही सोचते हैं, मर जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, दूसरा बॉडी, एंड दैट अनदर बॉडी is depending upon what the thinking that we have, and the thinking that we have is based on how we live, है ना? The whole life, the way we live will be the consciousness we are in, and that is the in that consciousness we think whatever the way we live. जैसा एंजॉय किए एंजॉयमेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं, बस यही सोच। तो this is not the way one has to live. Being in, we all are Puranjans. Please understand. We all are Puranjans. We are in our Dwarka. We are enjoying using all 9 gates. So so we need to understand that enjoying using these 9 gates is not the ultimate goal, because we understood from the Puranjan story that we again suffer in the next life. We again suffer in the next life. तो हमको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बोलता है कर्मयोग। तो इफ यू डोंट नो हाउ यू हैव टू वर्क, अगर आप बोल सकते हैं कि भाई आपने बोल रहे कि हमको एंजॉय नहीं करना, ठीक है, तो कर्म भी नहीं करना है क्या? कर्म भी नहीं करना है, कर्म करना है, लेकिन हमको मालूम करना है कि कर्म कैसा करना है। अगर कर्म कैसा करना है हमको मालूम नहीं रहेगा तो पुरंजन जैसा जिएंगे, पुरंजन जैसा मरेंगे, फिर वापस पुरंजनी बनेंगे, फिर वापस पुरंजन बनेंगे, फिर पुरंजनी बनेगा, फिर पुरंजन बनेगा, फिर क्या होगा? यही है, जन्मा मृत्यु जन्मा मृत्यु जन्मा मृत्यु। देयर इज नथिंग एल्स। इज दिस व्हाट वी वांट? सो देयर इज बियॉन्ड जन्मा एंड मृत्यु, राइट? अब बोल सकते हैं कि जन्मा मृत्यु लेने में क्या प्रॉब्लम है? जन्म होने के बाद मृत्यु से पहले हम कितना मेहनत करते हैं, कितना सफर करते हैं। कोई ऐसा आदमी है जिसको डिसीजेस नहीं आते? कोई ऐसा आदमी है जो बुढ़ा नहीं बनता है? नहीं है, सब सफर करता है, इस बॉडी में सब सफर करता है। इसलिए कृष्णा ने इस पर्टिकुलर लोक को बोला है दुखालय। कृष्णा मेंशन वी आर इन दुखालय। दुखालय में क्या मिलता है? दुख मिलता है, सुख मिलता है क्या? अगर कोई बोल रहा है कि मैं दुखालय में हूं लेकिन मैं सुख हूं, तो वी आर इन भ्रम, मोह में है। वी आर इन हम लोग भ्रम में है, क्योंकि कृष्णा खुद बोला है कि कृष्णा ने बनाया ना इस दुनिया को, तो कृष्णा इस दुनिया को बना के इस दुनिया का नाम रखा है दुखालय। भगवत गीता में कृष्णा बोलता है दुखालयम अशाश्वतम, टेम्पररी दुखालय। तो ऐसा दुखालय में आया है, इस दुखालय से बाहर जाना है। जेल में आया है, जेल से बाहर जाना है, पनिशमेंट के लिए आया है यहाँ पे, है ना? क्योंकि पिछले जन्म में हम लोग जो काम किया है उसका रिएक्शन लेने के लिए आए हैं। तो बाहर रह के हम लोग कुछ भी गलत काम करता है, हमको कहां रखते हैं? जेल में रखते हैं, पनिशमेंट के लिए। तो जेल में जो है, अगर वो पनिशमेंट पूरा होने तक वो जेल में रहना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कोर्ट ने बोला कि 12 साल के लिए तेरे को जेल में रहना है, तो 12 साल के लिए रहना ही पड़ेगा। ऐसा भी कोई लोग हैं 4 साल में 5 साल में बाहर आया है, 12 साल का शिक्षा होकर भी कैसा आया? बेल में आया तो भी वापस जाना चाहिए बेल खत्म होने के बाद। बेल में बाहर आना इज नॉट परमानेंटली मूविंग आउट ऑफ द जेल। कैसे आता है? एक और तरीका है बाहर आने का, गुड बिहेवियर, है ना प्रभु? कितना लोगों का बाहर भेजा? ठीक है, तो गुड बिहेवियर, अपने आप को चेंज करना है, एंड वी हैव टू प्रूव इन फ्रंट ऑफ अदर्स आईज दैट आई चेंज्ड। देन क्या बोलता है?
एक 15 अगस्त या जनवरी 26 में बोलता है कि इसको बाहर भेज दो। 12 साल का शिक्षा है, लेकिन 4 साल में बाहर आ जाता है, 3 साल में भी बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग भी जेल में हैं अभी, इस जेल से बाहर जाना है। हम वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसा जेल के बाहर रहने के टाइम पे था। चोरी करेंगे, खूनी करेंगे, हाँ? ये सब कुछ करने की वजह से आया है जेल में, तो वैसा ही रहेंगे। तो क्या करेंगे हमको पूरा शिक्षा, और अंदर आने के बाद भी वही किया तो और शिक्षा डबल। इससे अच्छा हम लोग चेंज करना चाहिए। वो चेंज क्या है, कैसा चेंज करना है? चेंज what is the change which will help us to go out of this material world? That is important to know. If we don't know that, if we don't know that change, then we are not knowing the purpose of this life. हम लोग बिना मकसद जी रहे, वैसा ही मरेंगे पुरंजन जैसे। ठीक है, तो इसलिए ज्ञान योग में जो है सिर्फ रिनाउंस करना जो है, दैट इज नॉट सफिशिएंट करके इन्होंने कृष्णा 4th श्लोक में बोल रहे। यू कैन से नॉट बाय मेरिली abstaining from the work can one achieve the freedom from reaction, nor by renunciation one can be attain perfection. ठीक है, मतलब मैं ठीक है, मेरे को चेंज करना है तो मैं चेंज हो जाऊंगा। ये जो कर्म मैं कर रहा हूं, इस कर्म की वजह से कर्म बंधन हो रहा है, तो मैं कर्म करना बंद करूंगा। मैं कर्म नहीं करूंगा। जिस कर्म की वजह से मैं बंदी हो रहा हूं, वो कर्म करना बंद कर दूंगा। कृष्ण बोल रहे हैं वो गलत है, संन्यास लेना गलत है बोल रहे कृष्ण। एक्चुअली रियल संन्यास इज डिफरेंट। यहां पे जो बोल रहे हैं मैं संन्यास बनूंगा, मान लीजिए मेरे को लाइफ का मकसद समझ में आ गया, मेरे को ये बंधन का कर्म नहीं करना है, तो मेरे को ये कर्म से बाहर जाना है, कर्म छोड़ देना है। कर्म छोड़ देना है करके मेरा वाइफ को छोड़ दिया, बच्चा को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, गांव को छोड़ दिया, अरण्य में गया, हिमालय गया। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं? हिमालय जाके मेडिटेशन करता है, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, कुछ तो करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, कुछ तो करता है। लेकिन वहां पे जाके कभी कभी बीवी याद आती है, आती कि नहीं? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी कभी बीवी आती है, और वो सोचता है अरे पिछले साल मैं बीवी के साथ इस समय में वैसा कर रहा था, अभी क्या कर रही होगी मेरा बीवी, मैं नहीं था उसके साथ। ऐसा सोच आता है ना। And then we think of the enjoyments that we did. We think of the time that we spent with our family. We think of how we can enjoy now in future. कर्म छोड़ना मतलब कर्म मन से भी छोड़ना है, कर्म इंद्रिय से छोड़ना नहीं है। Leaving the action is not inaction. You have to stop thinking about the sense objects. Is it possible? Stop thinking about the sense objects is possible? Impossible. That's why Krishna says, संन्यास लेना गलत है। संन्यास लेने से परफेक्शन नहीं मिलता है बोल रहे कृष्णा यहाँ पे। First thing you see, not by merely abstaining from the work one can achieve the freedom from the reaction. कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा आप संन्यास लेने से, क्योंकि in the order of the life we all have some responsibilities. The purification is important. अंतःकरण शुद्धि बोलते हैं उसको। If you don't purify yourself internally, then you stop working is not going to help you, and that is not going to get you the freedom from reactions. Enjoy करता हूं, उसकी वजह से मैं क्यों मेरे को कर्म बंधन आता नहीं है। एंजॉय नहीं भी करता हूं, उस एंजॉयमेंट के बारे में सोचता भी हूं, तब भी मेरे को कर्म बंधन आता है। I am a bad person by thinking. I might be good person outside.
even then I get the sinful reactions. Right? So unless one purifies his internal consciousness, he cannot renounce. A person who renounces should be purified person. Right? So ज्ञान योगी रिनाउंस होता है. ज्ञान योगी के स्टेज में हमको जाने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट इंटरनली प्यूरिफाइड. इंटरनल प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए. कर्म ऐसा करो जो आपको प्यूरिफाई करे. अपने आप को प्यूरिफाई करने जैसा कर्म करना चाहिए. इसलिए कर्मयोगी प्यूरिफिकेशन के लिए कर्म करता है. कर्मयोगी एंजॉयमेंट के लिए कर्म नहीं करता. दैट्स व्हाई कृष्णा इज सेइंग कर्मयोगी बन के प्यूरिफाई होके ज्ञान योगी बनो, संन्यास बनो. ज्ञान योगी मीन्स संन्यास बनो. डायरेक्टली संन्यास बनेगा तो नेक्स्ट श्लोक में कृष्णा बोलता है वो मिथ्याचारी है. मिथ्याचारी. मिथ्याचारी मीन्स झूठा संन्यास है ना. झूठा बोलते हैं. फेक sannyas. We might have seen so many sannyasis. They'll have a lot of big beard, दाढ़ी होता है, saffron dress पहनता है, और संन्यास पहनता है, हाथ में क्या बोलते हैं, डंडा पकड़ता है, कमंडल पकड़ता है, और क्या करने देखा आप, क्या करते हुए देखा आप? चैंटिंग करते हैं, और सिगरेट भी पीता है ना, और हाथ में मोबाइल भी पकड़ता है. ऐसा सन्यासी को भी हमने देखा है. इन लोगों को मिथ्याचारी बोलता है. सन्यास का मतलब ये नहीं कि 100-200 रुपया में हम लोग सैफरन ड्रेस पहनेंगे खरीद के और एक तिलक लगा देंगे, एक कंठी माला लगा देंगे, तो इससे सन्यास नहीं बनेगा. सन्यास इनसाइड से बनना चाहिए. इंटरनल सन्यास इज इंपॉर्टेंट. डिटैचमेंट ऑन एनीथिंग इज इंटरनली इज इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं बना तो सन्यास का कोई मीनिंग नहीं है. इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पे, merely abstaining from the work can one achieve freedom from the action, not by and nor by renunciation alone can one attain perfection. These are the two things. सिर्फ काम करते करते भी परफेक्शन नहीं आता है, unless otherwise you purify yourself. तो संन्यास अगर बनना है तो संन्यास बराबर एकदम नंबर 1 संन्यास बनना है, नहीं है तो मिथ्याचारी जैसा संन्यास नहीं बनना चाहिए. भागवत में एक कथा है अवधूत ब्राह्मण के बारे में. दिस कम्स इन 11th कैंटो. अवधूत ब्राह्मण. और वो अवधूत ब्राह्मण है, एक्चुअली वो कुछ नहीं करता है. वो कुछ नहीं करता है, ऐसा घूमते रहता है. और वो अवधूत ब्राह्मण को यदु डायनेस्टी का किंग है, वो आके मिला है. उन्होंने पूछा है, क्या यार आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा घूम रहे हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्यों ऐसा बिना काम का घूमते रह रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव? तब इन्होंने बात करना शुरू किया. जनरली अवधूतास डोंट टॉक एनीथिंग. दे एक्ट लाइक डेफ एंड डम. दे डोंट स्पीक, दे डोंट एक्ट, दे जस्ट रोम अराउंड एंड व्हाटएवर दे गेट दे ईट. इफ दे डोंट गेट, दे डोंट ईट एनीथिंग. ऐसा ही रहता है अवधूत. और कपड़ा भी नहीं पहनते. दिगंबर बोलते हैं. ये जेन्स में होता है ऐसा, है ना, अवधूत बन के घूमते रहता है. तो वैसा see you are handsome also, you can get a good wife, and you are energetic, you can do some work, and you are intelligent, you can do anything. What are you getting by doing like this? Then that Avadut Brahman speaks, and he said,
world, there are 24 tattvas. Right? This material nature is made of 24 tattvas. And all these 24 tattvas are my gurus. And my aim is to learn from each tattva and understand and what to do and what not to do. This is what I am doing. So he is not simply roaming. He is learning from each tattva. He is learning from Hava. He is learning from water. He is learning from fire. He is learning from Akash. He is learning from earth. He is learning from a bird. He is learning from a prostitute lady. He is learning from so many things that are coming in front of him. Everything and anything is useful for us to learn. This is what I am doing. If I am sitting at one side, I can't. If I am sitting at one place and one village, and if I am, restricted within my family, how can I learn all these things? And this is the same thing that I am doing. I am learning from everything. And when I see a Vaishya, prostitute, I am learning what I should do, what I should not do. When I am learning an unmarried girl who is ready to marry, I am learning from her also. And I am learning from a bird. And he mentioned one story in that there are two birds in the forest. There are two birds in the forest, male bird and female bird. They both are very, very good each other. They love each other. And what they did, they constructed a house for them. Bird's house. They constructed a house for them. They are living together very happily. Every day they are going out, earning their food and coming back, and they are spending their time in their house, enjoying. After some time, what happened? After some time, बच्चा हुआ है. और जब ये बच्चा हुआ है और ये मेल बर्ड ने बोला फीमेल बर्ड को, आप बच्चा को देखभाल करो, मैं जाके तुम सबका खाना लेके आता हूं. Have you ever seen the father bird going and bringing the food for the small birds? No. Father bird? No, father bird भी करता है. Sometimes नहीं, कब करता है मैं बताता हूँ. ठीक है. Immediately after the delivery, the small kids are, they don't know anything. Mother will be there as a protection for them. Mother will feed them. So, mother takes care of them. That time, mother cannot leave the babies. So, that time father goes. Father brings the food. जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है ना, फादर अकेला सबको खिलाना मुश्किल होता है ना. अकेला एक ही आदमी सबको खिलाना मुश्किल होता है. जैसा बच्चा बड़ा होता है, तब बोलता है मदर को, थोड़ा मेरे लिए मदद के लिए आ जाओ. मैं अकेला तुमको भी फीड करना है, बच्चों को भी फीड करना है, मुश्किल होता है मेरे को, आप भी आ जाओ मेरे साथ. हम दोनों जाके कुछ कमा के लेके आएंगे, बच्चों को खिलाएंगे. तो वाइफ एंड हस्बैंड both go for food. Then they eat, they bring for their chicks. Then उसको खिलाता है. जैसा बच्चा और बड़ा होता है, चलने के लायक होता है, तब क्या करते हैं, भाई तुम सबको खिलाना हम दोनों की बस की बात नहीं है, अभी ज्यादा खा रहे तुम लोग, तो आ जाओ तुम लोग भी बाहर. ठीक है, सब बाहर आ जाते. अब मतलब देखिए, जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता है ना, तब तक फादर मदर केयर करते हैं. जब बच्चा बड़ा होता है, वो केयर छोड़ देते हैं, बोलता है कि तू अपने आप को देख लो. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ आल्सो. तो वैसा ही अ फादर एंड मदर, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर किड्स. तो एक दिन क्या हुआ, जब ये लोग बाहर गया, तो ये जो बर्ड्स हैं अपना घर से बाहर आना शुरू किया. जैसे बाहर आना शुरू किया, ये जो बर्ड्स को पकड़ने वाला होता है ना, वो नेट डालता है. हंटर नेट डाल के उसको पकड़ता है. तो एक हंटर है, उन्होंने एक पूरा नेट लगा के चला गया. जैसा ये बर्ड्स बाहर आके खेलेगा, तो वो नेट में फंस जाएगा.
तो ये मम्मी डैडी दोनों बाहर गया है, वापस आने के टाइम पे देखा तो सारा की सारा बच्चा नेट में है। तब तक वो हंटर नहीं आया। तो पहले तो मम्मी को तो बहुत, मदर विल क्राई, मदर हैज अ लॉट ऑफ अफेक्शन कंपेयर टू फादर। दोनों का होता है लेकिन ज्यादा होता है मदर को। तो ये मदर उस बच्चों को देख के रोने लगा, इतना इतना रो रहे, रो के उनको लगा कि अगर मैं मेरा बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, मेरे को रहे कि कोई फायदा नहीं। इफ आई डोंट पुल देम आउट फ्रॉम दैट नेट, देन देयर इज नो पॉइंट फॉर मी टू लिव। वो हंटर आने से पहले ही मेरे को उसको, बच्चों को अंदर से बाहर निकालना, नहीं है तो वो लेके जाएगा, वो खाएगा, मार देगा। ये जाके उसको बचाने के चक्कर में वो भी फंस गए, वो मदर बर्ड भी फंस गए। तो अभी बाहर कौन है कि फादर बर्ड। वो फादर बर्ड बाहर रह के देख रहे। अब ये भी रो रहे और ये भी बोल रहे अरे क्या इतना प्यार किया, इतना ये किया, इतना देखभाल किया, इतना अटैचमेंट था अभी तक, अभी ये लोग मरने वाला है, मैं भी एक दिन मरूंगा, जैसा ये लोग मरने वाला है अभी मैं भी एक दिन मरूंगा। फिर भी अपना बुद्धि, अटैचमेंट इतना है बीवी के लिए और बच्चे के लिए, इतना अटैचमेंट है, अटैच्ड सो मच that he could not control himself, and he also thought that I have to protect them, I have to pull them out from that net, and then he went and he also got stuck in that net. सब मर गए, पूरा फैमिली मर गया। This is what happens with everybody's life. This is what that Avadhuta Brahman told to Yadhu king and said कि कोई भी आदमी का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई दिन मरेगा, लेकिन पूरा जीवन मेहनत करता रहेगा मरने के लिए। और ये जो बर्ड्स हैं, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, राइट? हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, हम भी बाहर जा रहे हैं, एक नहीं है, वाइफ हस्बैंड सब चार हाथ से कमाई कमा रहे हैं, एक शिफ्ट नहीं है, 2 शिफ्ट, कभी ज्यादा पैसे चाहिए तो क्या करते हैं, 2 जॉब भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, बाहर आके बिजनेस भी करते हैं, एक जॉब करते हैं, दूसरी जगह में कंसल्टेंट काम करते हैं, फिर वहां से 2 शिफ्ट करते हैं, बहुत लोग करते हैं without understanding the purpose of the life. So this is not something that we can learn by looking at the hard working people. Looking at the birds, we should learn that we should not live like a bird. We should not live like a bird. और एक अनमैरिड लड़की थी, वो जो अनमैरिड लड़की जब घर में थी, उसको देखने के लिए लड़का आ रहा था उस दिन, उसको देखने के लिए लड़का आ रहा है। तो वो लड़का जब आएगा, लड़का अपना फैमिली के साथ आएगा घर पे, तो उस टाइम पे मम्मी डैडी बाहर गए और वो लड़की क्या किया, अरे कोई आया, मेरे को अंदर जाना है, उसके लिए कॉफी टी कुछ तो बनाना है, तो घर में तो कुछ है ही नहीं है। तो तब इन्होंने ओल्डन डेज दे यूज्ड टू क्या करते हैं उसको, pounding, they do pounding so that the grains, उस grain से खाना बनाता है। तो वैसा कर रही थी। जब वो कर रहा था, उसका अपना बैंगल्स होता है ना, बैंगल्स एक दूसरे को लग के साउंड आ रहा है, बैंगल्स एक दूसरे को लग के साउंड आ रहा है। तो साउंड आ रहा है तो उनको लगा कि ये साउंड अगर आएगा तो बाहर जो लोग बैठा है उसको समझ में आ जाएगा मैं पाउंडिंग कर रहा हूं, तो उसको समझ में आएगा वी आर ए पुअर पीपल, वी डोंट इवन हैव ए राइस, आई एम प्रिपेयरिंग द राइस एंड आई एम, in those days those who are doing this consider as poor people. If they understand I am a poor girl and a poor family, they might reject my match. So इन्होंने क्या किया, हाथ का जो बैंगल है सिर्फ 2 रख के बाकी सब निकाल दिया, फिर शुरू किया पाउंडिंग। वो दोनों में एक दूसरे को टकराए, फिर साउंड आ रहा है। Then she thought that I should remove
everything and keep only one. Then only वो साउंड नहीं आएगा. तो इसको देख के भी हम सीख सकते हैं. दिस इज व्हाट अवधूत ब्राह्मण सेड कि भाई अगर तुम अकेला नहीं जिएगा, तुम सबके साथ ही रहेगा, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है. सेल्फ रियलाइज होने के लिए आपको अवधूत बनना ही पड़ेगा, संन्यास बनना. दिस इज रियल संन्यास दैट कृष्णा इज टेलिंग अस टू टेक. Not the Midhyachar sannyas, not without internal purification. Till you go to that stage, you should become a karma yogi and do work and get yourself purified. Unless you purify yourself, you cannot become a sannyasi. This is the essence of today's 2 verses. Okay? So we'll end the session here. Thank you very much. If anyone have any doubts, we will take few minutes. And then we will end. Thank you. Yeah. See, Jnana Yogi's ultimate goal is to get liberation into the impersonal Brahman. Impersonal Brahman is also a characteristic of Supreme Lord. See, either you connect with God or the attributes of God or any reflection of the God. It is more or less same. Like you love Krishna or you love somebody, and you may love that person, or sometimes you also, while you see the person belongings also you feel him. Right? ऐसा होता है ना, बच्चा घर में नहीं रहता है, स्कूल जाता है. If kids are going school and you have a lot of attachment with kids, right? So when kids are going to school, then you wash their clothes, and when you are drying their clothes, you feel like as soon as you see the small shirts, then you feel like the affection towards your son, or you see the reflection of your son also, you will take him you will consider him as a son. That way Jnana Yogis also, they meditate on something or they do their practices for something, some other attribute of Krishna. That's why they are also yogis. How the mental speculation they come to the level of impersonal Brahman realization? Yeah, with the mental speculation, they think that God is not someone who is having the form. If he has a form, what is the difference between me and God? That's why, if you see in this 4th verse, somewhere I'm not sure where it is. It is mentioned in the purpose. You can see here. Can you read this, Mataji? Simply by that simply by adopting sannyasa or retiring from fruitive activities, one at once becomes as good as Narayana. This is what Jnana Yogis think. Jnana Yogis think, I will stop working, then I become Narayana. This is their concept of liberation. Okay. But no one can become Narayana. Right? I am not God. No one can become a God. So the jnana, the thing, why they are thinking that I become Narayana? Because they think that I am different from Narayana, I should become Narayana. That is the ultimate goal and that is the liberation. So what they think, Narayana is different from me. Let's say I have this face, this body, I have 2 legs,
two hands, this face, and I have two eyes, 2 ears. That means I should transform like something else. And that something else will not have 2 ears, 2 eyes, 2 nose, mouth, hands, legs. It will not be there. If that something else also has this form, then there is no difference between me and God. That's why they come to with their speculation, they come to the concept that God is impersonalized. The God is impersonal. समझे ना? You understood? They got this knowledge by reading some books like that. Yes, yes, yes. Actually, if you see the Mayavadi sannyasis, we also call them as Ekadandi sannyasis. They have their own scriptures which talks about impersonal Brahman. But impersonal Brahman is not the ultimate goal. The liberation is not merging into impersonal Brahman. Liberation is going beyond impersonal Brahman and getting the Krishna's lotus feet. That is the liberation. But these Mayavadi sannyasis, they think I become Narayan. Is the Mayavadi sannyas. That's why Prabhupada condemns their philosophy, saying that no one can become Narayan. Okay, that's why they hold Ekadandi sannyas. Ekadandi means one single danda. So single danda means everything is one. Myself, Bhagavan, एक ही है. और material nature, me and Bhagavan, एक ही है. But a real sannyasi who is not Mayavadi, he holds Tridandi sannyas. He will have three danda. Tridanda means I am different, this material nature is different, God is different. I am in this material nature to serve God. This is the concept that Tridandi sannyasi believes in. So that's the reason we should not become Mayavadi sannyasis. Even Chaitanya Mahaprabhu also condemned Mayavadi sannyasa. To condemn, he went ahead and taken the sannyas of Maya from a Mayavadi guru and then rejected it. That's yeah. That mic is not working. Anybody else has any question? Yes. Prabhuji, you told that Jnana Yogi, Yoga and Karma Yoga both are not independent paths. Yes. But what about Bhakti Yoga? Yeah, very good question. Whether you are a Jnana Yogi or a Karma Yogi, the ultimate goal is Bhakti Yogi. See, Bhakti Yogi is the 10th step of the ladder. Jnana Yogi is one step before. Dhyana Yogi is another step before. And Karma Yogi is another step below. So you take one by one step and go and become a Bhakti Yogi so that you can get liberated. So in one ladder, these are all multiple steps. If you have an opportunity to not climb on these steps, directly go on to the 10th step, 10th floor, using a lift. Using a lift, you can go directly to the 10th floor, then that is the shortcut path. So the shortcut path is Bhakti. You directly go to, one important explanation. Prabhuji asked, what is the Bhakti Yogi? Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is the final yoga in the yoga ladder. Bhakti Yoga is the topmost system which will help us to get liberated. But everyone has to reach to that level. If you have, if you can become a directly Bhakti Yoga, you don't need a purification process. That also mentioned in this. If you become a Bhakti Yoga, there is no need for a purification process. To become a Jnana Yogi, you need a purification process. To become a Bhakti Yoga, there is no purification process. Bhakti Yoga, the activities of Bhakti Yoga itself is a purification method. You don't need to do anything. See, coming to Aarti, chanting, Kirtan, Bhajan, listening to the Bhagavad Gita class, taking Prasadam, these are all the part of Bhakti Yoga. And these are all the purification process. So one can become liberated just by adopting the Bhakti Yoga process directly. That is called Krishna consciousness. So unless otherwise you be in Krishna consciousness and unless otherwise you chant Hare Krishna Mahamantra, you cannot come to the purification. The chanting of Hare Krishna, Cheto Darpana Marjana. The chanting of Hare Krishna is cleaning the mirror.
the purification. That's why Acharya says, using the Hare Krishna Mahamantra, you should purify the heart. So when you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This purifies the heart. So one time you chant, little purification happens. You chant multiple times, the purification increases. And as you chant more and more, the purification increases, and then you become a pure devotee. So the process of Bhakti Yoga itself is a purification process. Then you don't need to do anything else to get purified. So it is like going to the 10th floor using the lift instead of going by staircase. And the other yoga systems are staircase, steps in the staircase. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. So let's all chant one time Hare Krishna Mahamantra and then Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much.